डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स इन पाइथन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि हम तीन प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन में। फर्स्ट वन इज लिटरल्स, सेकंड वन इज डेटा टाइप्स। इन डिटेल पढ़ेंगे अपन लगभग 3 महीने हम सिर्फ डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स, उसके प्रीडिफाइंड फंक्शन, रो से लेके एडवांस तक सारी सारी चीजें अपन डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे। और थर्ड है आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स। कल हमने लिटरल्स पढ़ लिए थे। थ्री टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। न्यूमेरिकल लिटरल्स, जिसमें इंटीजर और फ्लोट वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यूज होल नंबर्स, data without decimal values, that is called integer values. Float values, data with decimal point, that is called float values. Boolean literals मतलब true and false, और string literals जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लेंगे वो कौन सा literals होगा आपका string literal। ठीक है, तो अभी तक की कहानी ये थी। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। ठीक है, और इनको बनाने के रूल्स। तो कल हमने कुछ डेफिनेशन आपको बताई थी। What is variable? What is variable? तो बताएगा। Yes, ये डायग्राम बनवाया। Yes, ध्यान से देखो। Inputs are called literal, और इन इनपुट को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी साइज की जरूरत पड़ेगी, और ये मेमोरी साइज कौन प्रोवाइड कराएगा? डेटा। ठीक है, और इनके लिए एक लेवल होगा या नेम होगा। Distinct names makes us to identify the value stored in memory space, and distinct names are called identifiers। ठीक है, और here identifiers values are changing during execution of the program, and identifiers are called variables। yes, distinct name क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर्स, और आइडेंटिफायर्स भी क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। यस, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है, वो क्या होंगे? वेरिएबल। यस स्टूडेंट, ये हमने कल तक पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर मेकिंग वेरिएबल इन पाइथन। और ये लगभग लगभग सभी लैंग्वेजेस में यही रहते हैं। कुछ एक दो पॉइंट जो है वो चेंज होते हैं, बाकी यही सब रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं अपन इम्पोर्टेंस। Importance of identifiers or variables। Importance of identifiers or variables। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी ऐड हैं वो थोड़ा सा, अगर कोई इधर उधर है, मार्केट में है, कहीं पर भी है, तो दोस्ती ऐसी जगह पर बैठ कर जरा शांत। all the literals all the literals are stored in main memory by allocating sufficient amount of memory
allocating sufficient amount of memory by help of data type, by the help of data type. To process the literal values of data stored in main memory, as programmer, we must give distinct names to create memory space. Yes, to process the literal values or data stored in main memory. As programmer, as programmer, we must give distinct names to create memory space. Since the distinct names, since distinct names makes us to identify the literal or processing, and hence distinct names are called identifiers. Names are called identifiers. फिर अब आइडेंटिफायर से अपन बहुत सारी वेरिएबल्स, ठीक है, प्रोग्राम में लिख के दीजिए identifiers value can be changed during execution of the program, and hence identifiers are called variables. Last point, hence all types of inputs and all types of inputs, literals or data must be stored in main memory in the form of variable.
in the form of variables. अब लिखते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल. ये प्रॉपर डेफिनेशन है वेरिएबल की. A variable is an identifier whose value can be changed during execution of the program. ठीक है? A variable is an identifier whose values can be changed during execution of the program. ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. All the variables in Python are called object. Python की केस में सारे के सारे वेरिएबल क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट. ये बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है ना, इसको मैं प्रूव करूंगा. All the variables, all the variables in Python are called object. और हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होती है? क्लास. ठीक. behind of all objects, there exists a class. There exists a class. Yes. A variable is an identifier whose value can be changed during execution of the program. Slide करके बंद कर. थोड़ा सा गैप है क्या? All the variables in Python are called objects. Behind of all objects, there must be exist a class. Yes. Perfect. अब जो हम ये बनाते हैं ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल. यस. जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए या फिर यहाँ पे लिखा बी या फिर हमने लिखा सी. क्या ए बी सी ही लिख सकते हैं? या ए बी सी के अलावा कुछ और नेम दे सकते हैं हम वेरिएबल के? है ना. उसके अपन रूल्स पढ़ेंगे जो लगभग सभी लैंग्वेज में, चाहे सी, जावा, पाइथन, सब में लगभग एक जैसे. ठीक. तो हेडिंग बनाएंगे अपन रूल्स फॉर यूजिंग वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग. अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. डेली आपको जो भी मैं कराऊंगा आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे. चलिए हेडिंग बनाइए रूल्स फॉर यूजिंग वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग. फर्स्ट रूल. अब वेरिएबल नेम बिल्कुल ये याद होनी चाहिए सबको, है ना. अब वेरिएबल नेम is
क्लियर? A variable name is a combination of alphabets, digits, and a special symbol, special symbol, and a special symbol, special symbol, yes, underscore. फर्स्ट रूल है, क्या है? जो भी हम वेरिएबल नेम बनाएंगे, देखो इंडिविजुअल भी हो सकता है, अल्फाबेट भी ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, लेकिन एक रूल के तहत, है ना? अभी वो उसका डिजिट का रूल बताएंगे, और अंडरस्कोर, और इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। कई लोग बात लोग ये सोच लेते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अल्फाबेट्स कौन से कहलाते हैं? ए से लेके जेड तक, ये क्या कहलाते हैं आपके? अल्फाबेट। या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, जो भी आप वर्ड लेंगे ये क्या कहलाएंगे? अल्फाबेट। इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। डिजिट्स कौन सी होती है? 0 to 9, ये क्या कहलाती हैं? डिजिट्स। तो इनको भी यूज कर सकते हो, और इसमें केवल और केवल स्पेशल सिंबल कौन सा यूज कर सकते हो? अंडर स्कोर। अंडर स्कोर आपका ये प्लस माइनस प्लस इक्वल टू के बाद, जीरो के बाद में होगा कीबोर्ड, तो अंडर स्कोर यूज कर सकते हो। और इनका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, मिक्स, इनको मिला के भी आप बना सकते हो। यस, फर्स्ट रूल तो यही है कि वेरिएबल नेम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अ स्पेशल सिंबल अंडर। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप डॉलर यूज नहीं कर सकते, यस, आप इक्वल टू यूज नहीं कर सकते, आप इस कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में, केवल केवल अंडरस्कोर यूज कर सकते हो अगर स्पेशल सिंबल लेना हो। यस, रूल नंबर 2, फिर अपन इसके एग्जांपल देखते हैं दोनों रूल। रूल नंबर 2, the first letter of the variable name, first letter, first letter of the variable name must be, must be start with alphabet or alphabet or underscore। अब देखो, एक तो हमने रूल क्या लिखा है कि इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो अल्फाबेट हो, डिजिट हो, या स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर, या अकेले हो तब भी चल जाएगा। लेकिन एक रूल है कि भाई जो फर्स्ट लेटर होगा वो तो या तो अल्फाबेट में से हो, या तो किसमें से हो? अल्फाबेट में से हो, या फिर अंडरस्कोर। डिजिट आपका फर्स्ट लेटर नहीं हो सकता। अगर डिजिट आप फर्स्ट लेटर रखोगे तो वहां पे एरर आएगी, नॉट अलाउड। यस, अब देखो, अल्फाबेट आप एक वेरिएबल बना सकते हो, आप अंडरस्कोर वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन आप वन, ये आप वेरिएबल नहीं बना सकते डिजिट। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अलाउड ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लेटर इन दोनों में से एक कुछ होना चाहिए, या तो अल्फाबेट हो या स्पेशल सिंबल। यस, तो मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, आपको बताना वैलिड है या इनवैलिड। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज करते हैं, और ये आपको भी घर जाके करनी है ना? पहले
इक्वल टू 1.2, सेल इक्वल टू 1.2। यहाँ पे क्या है, सेल क्या है, वेरिएबल नेम है और उस पर हमने वैल्यू असाइन की है 1.22। तो ये सेल जो है वैलिड वेरिएबल नेम है कि नहीं, इनवैलिड। कितने लोग वैलिड के साथ जाना चाहेंगे, रेज योर हैंड। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आपके यूनिट में भी ऑप्शन रहता है, यस, रेज योर हैंड। यस रोहित, यस यस, मतलब वैलिड है क्योंकि सेल में सारे सारे अल्फाबेट्स, कोई स्पेशल सिंबल अलग से नहीं है। यस, तो ये वैलिड है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट स्टाइल करेंगे तो हमें सक्सेसफुली आउटपुट मिल जाएगा 1.2। परफेक्ट। वन सेल इक्वल टू 3.4, वैलिड है इनवैलिड, क्यों इनवैलिड, सेकंड रूल वायलेट कर रहा है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगी, एरर आएगी। यस, सिंटैक्स एरर, ये नाम भी याद रखते जाना है ना। कौन सी एरर आ रही है, इनवैलिड डेसिमल लेटर। परफेक्ट, तो ये नॉट वैलिड। यस और नो स्टूडेंट। अंडरस्कोर सेल इक्वल टू 4.5, वैलिड है इनवैलिड, कितने लोग वैलिड के साथ जाना चाहेंगे, आराम से, वैलिड है इनवैलिड, वैलिड। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई इनवैलिड के साथ जाना चाहेगा, कोई स्टूडेंट इनवैलिड के साथ जाना चाहेगा, रोहित इनवैलिड है या वैलिड है, अनम्यूट करके बोलो। वैलिड है सर, वैलिड। रोहन क्या बोल रहा है, वैलिड है इनवैलिड है, वैलिड है सर, इनवैलिड है, वैलिड है। ये वैलिड है। यस, क्योंकि हमारे सारे रूल्स को ये फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिंट अंडरस्कोर सेल करेंगे तो सक्सेसफुली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यस, नेक्स्ट सेल 1 इक्वल टू 6.7, वैलिड एंड वैलिड, वैल हम लोग वैलिड के साथ हैं। यस सर, हाँ कंचन, वैलिड एंड वैलिड, वैलिड है सर। वैलिड। यस, क्योंकि अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन और डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, अगर फर्स्ट पोजीशन पे होता तो क्या हो जाता, इनवैलिड। अगर एरर होगी तो डायरेक्ट एरर आ जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, अंडरस्कोर सेल अंडरस्कोर इक्वल टू 5.6, वैलिड इज वैलिड, इनवैलिड, कितने लोग इनवैलिड के साथ रेज ऑन हैंड। अनमोल, आराध्य इनवैलिड के साथ, वेरी गुड। कितने लोग वैलिड के साथ, रिमेनिंग वैलिड के साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनम्यूट करके बोलिए, जिसको लग रहा है कि वैलिड हो, इनवैलिड कितने लोग को लग रहा है इनवैलिड है, किसी को लग रहा है इनवैलिड है, चैट बॉक्स में भी आप चैट डाल सकते हैं। अनमोल और आराध्य को लग रहा है कि इनवैलिड, क्यों लग रहा है अनमोल इनवैलिड, हमने कब बोला कि 2 बार नहीं हो सकता, हम लोग को तो 50 बार हो सकता है। हमने यहाँ कहीं लिखा कि अंडरस्कोर केवल एक बार हो सकता है, हमने ये बोला कि कॉम्बिनेशन हो सकता है अंडरस्कोर के, अल्फाबेट के और डिजिट के, बस फर्स्ट लेटर जो है या तो अल्फाबेट आना चाहिए या अंडरस्कोर आना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। आरत कहाँ लगा था, हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं। हाँ हाँ, 2 अंडरस्कोर नहीं, कितने भी यूज कर सकते हो, no issue। हाँ ठीक, तो ये क्या है, पहले। यस, नेक्स्ट अंडरस्कोर 1 to 3 इक्वल टू 56, वैलिड एंड
वैलिड है सर। कितने लोग बोला इनवैलिड? वैलिड। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई इनवैलिड है? सर हाँ बोले, क्यों है इनवैलिड? वैलिड है सर, वैलिड है, वैलिड। ये वैलिड है क्योंकि फर्स्ट पेज से अपना कोई सिर्फ और यहाँ पे क्या है, डिजिट में फंड का कॉम्बिनेशन है, कोई चीज इनवैलिड नहीं कर रही है आपने, ठीक, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यस और नो? वैलिड है इनवैलिड? वैलिड है इनवैलिड? अंडरस्टूड यूज किया है। इनवैलिड अपनी बात करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट इनवैलिड के साथ जाना चाहेगा? रोहित? वैलिड है सर, वैलिड। वेरी गुड। क्यों वैलिड? यस सर, वैलिड है, वैलिड। वैलिड है ना? क्यों है वैलिड? क्योंकि फर्स्ट, भाई हमारे कोर्स मतलब संविधान, तो उससे अलग कुछ नहीं है। ये अंडरस्कोर है, ये प्रिंट करा दे रहा है तो यस और नो? यस सर। परफेक्ट। चलिए, ये था कौन सा रूल नंबर 2। इसको हम कॉपी कर दे रहे हैं हमारे सारे एग्जाम्पल्स को, इनको हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। रूल नंबर 3, within the variable name special symbol are not allowed, are not allowed except underscore, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं रहेगा। कोई भी नहीं मतलब कोई भी। यस, अब इसके एग्जांपल में बताना आपको, ठीक है, ध्यान से। टोटल सेल इक्वल्स टू 56, वैलिड है वैलिड? कितने लोग वैलिड वोट के साथ जाना चाहेंगे? रेज योर हैंड कॉन्फिडेंट, दोनों हाथों से। यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और कितने लोग? नहीं, अपनी बात अपने अंदर रखिए, है ना? कितने लोग वैलिड के साथ जाना चाहेंगे कॉन्फिडेंटली? 1 2 3, दोनों हाथों से, है ना? 4। कितने लोग इनवैलिड के साथ जाना चाहेंगे? 1 2, तो तुम्हारा कुछ नहीं वैलिड, वैलिड। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने कमेंट लिखिएगा, उसमें वैलिड है इनवैलिड, ठीक है? तो इनवैलिड वाले कितने हैं? केवल 2, वैलिड वाले 4, लेकिन 2 4 पर 1 है। यस, इट इज इनवैलिड। आपके दोनों हाथ नीचे, नहीं था अभी, है ना? ये क्या है?
यहाँ पे स्पेस स्पेस इज आ स्पेशल सिंबल। यस, स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर के अलावा कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यस, गैप आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्पेशल सिंबल। यस, स्पेस भी क्या है? स्पेशल सिंबल। यस, इसकी भी आर की वैल्यू होती है, मैं आर की वैल्यू दिखाऊंगा, है ना। इसलिए इनवैलिड, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम यही करते हैं लोग वेरिएबल बनाने में, क्या दे देते हैं वेरिएबल। यस, अंडरस्कोर भी नहीं है ना, अंडरस्कोर यूज हो सकता है, यही तो हमारा रूल है। क्या है? विदिन द वेरिएबल नेम स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी नहीं, मतलब कोई भी। यस, total underscore cell equals to 45। वैलिड इनवैलिड? वैलिड। तो क्योंकि अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल है, ये अलाउ है, तो ये वैलिड। परफेक्ट। वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड पक्का? कितने लोग इनवैलिड के साथ रेजर है? पक्का? चलिए इनवैलिड, ये रूल्स रूल्स क्या हमारे रूल्स मतलब संविधान, ये क्या आएगा? मेरा परफेक्ट। चलिए, टोटल डॉलर सेल इक्वल टू 45। वैलिड इनवैलिड? पक्का? पक्का? सभी लोग? हम भी आपके साथ। यस, अंडरस्कोर। यस, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? अंडरस्कोर। 94। ये टेस्ट में आएंगे, इसकी क्वेश्चन जब टेस्ट होगा, ये ध्यान से समझना। वैलिड इनवैलिड? पक्का? वेरी गुड, परफेक्ट। टोटल सेल इंडिया इक्वल टू 56। वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड। क्यों? एज स्पेशल। कितने लोग इनवैलिड के साथ है? सभी? बताओ कितने? दोनों हाथ करो ऊपर। इनवैलिड? पक्का? पक्का? पक्का है ना? कोई डाउट नहीं? इट्स अ वैलिड। बताओ ना, मैं ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, हमने मन से रीजन के साथ बताएंगे। इट्स अ वैलिड, और इसका आंसर आएगा आपका, यस स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा आपका 45। कितना आएगा? 45। फिर भी 45 आएगा। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ रूल्स चल जाते हैं नियम के खिलाफ। इंटर करें? पक्का? इंटर करें या सुनो? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट? यस। Yes, sir. ये तो सब रूल बताइए। चलिए, इसको नोट करके लिखिए। ठीक, पाइथन के केस में जो हैज होता है वो कमेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कमेंट। हैज इज यूज्ड फॉर कमेंट। यस, दिस इज द सिंबल हैज यूज्ड फॉर कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। कोई वो अलाउड
पाइथन पूरे पाइथन प्रोग्राम में हैश लिखना और हैश के बाद कुछ भी लिखते रहो, कोई वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। अच्छा, उसको इतना वैल्यू नहीं। हाँ, मतलब हैश का ये मतलब होता है कि जैसे आप हम यहाँ पे हैश लिखे और इसका डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, टोटल सैलरी वेरिएबल, है ना, ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है, कमेंट लिखने के लिए होता है। 45 ऊपर वाली वैल्यू आप नहीं नहीं, मेरा वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू मैंने पन्ने प्रिंट किया था। आप देखो उसकी भी बात है, समझ में आ गया। मतलब इतने पोर्शन से कोई मतलब नहीं। अब बचा कितना पोर्शन, टोटल अंडरस्कोर सेल। अब चूंकि यहाँ पे देखो आप ऑलरेडी टोटल अंडरस्कोर सेल ले चुके हो, वेरिएबल 45%। पाइथन के केस में क्या होता है, टॉप टू डाउन आप चलते हो और वन ऑफ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही हमने क्या लिखा था, टोटल अंडरस्कोर सेल इक्वल टू 45, तो अब इसमें क्या हुआ था, मेमोरी में इसने जगह बनाई, यस, उसका नाम क्या लिख दिया हमने, टोटल अंडरस्कोर सेल, यस, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी है, 45। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो सबसे नीचे हमने जस्ट टोटल सेल लिखा और उसके आगे क्या लिख दिया हमने, एस, और कमेंट लिख दिया। इस रिपोर्ट को तो पीवीएम देखेगा भी नहीं कि क्या लिखा है। अब उसको मतलब टोटल सेल को आपने कॉल किया, उसके अंदर वैल्यू क्या है ऑलरेडी 45, तो 45 वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दिया। यस, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज की असाइन करके, जैसे टोटल सेल इक्वल टू मान लो हमने 89 लिख दिया, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 89। अब हम टोटल सेल को कॉल करेंगे, जैसे यही बात हम फिर से कॉल करेंगे, अब वैल्यू कितनी आएगी, 89, क्योंकि हम 45 को रिप्लेस करके क्या पहुंच गया है, 89। परफेक्ट, यस और नो। तो इसमें कहीं पे लिख लेना आप, हियर द सिंबल हैज इज इन पाइथन यूज्ड फॉर कमेंटिंग, यस। ये था अपना रूल नंबर 3। वगैरह से बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर फर्स्ट क्या था, a variable name is a combination of alphabet, digits and a special symbol under it. Second, the first variable, the first letter of the variable name must be alphabet or underscore. Third, no keywords allowed except underscore. Yes, fourth rule, rule number 4, no keywords. Yes, no keywords, no keywords to be allowed, to be allowed here to be used as a variable name, as a variable names, as a variable names, because all the keywords, all the keywords are having special meaning, special meaning to the language compiler, to the language compiler. तो इसमें क्या होता है, कोई कीवर्ड अलाउड नहीं रहता। कीवर्ड मतलब रिजर्व, जिसका मतलब पहले से ही पाइथन के अंदर है, यस, वो अलाउड नहीं रहता क्योंकि उसका ऑलरेडी मीनिंग कुछ ना कुछ इसके अंदर होता है,
और नो? तो नेट खत्म हो गई तुम्हारा? जियो है ना? एयरटेल तो तुम्हारे में था, जियो वाला को कनेक्ट करो। जियो मिल गया है? ये है एयरटेल जियो, पासवर्ड 923। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? यस सर। So no keywords to be used as a variable name because all the keywords are having a special meaning to the language compiler. Yes, पाइथन के केस में 35 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा और कैसे निकालना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो कोई भी कीवर्ड अलाउ नहीं होता है। जैसे वाइल हुआ, इफ हुआ, ये क्या है? कीवर्ड है। ऐसे 35 कीवर्ड्स होते हैं जो कि वेरिएबल नेम में आप यूज नहीं कर सकते। यस, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। वाइल लूप के लिए यूज होता है। यस, वाइल 45 वैलिड इनवैलिड इनवैलिड। यस, क्योंकि वाइल क्या है? कीवर्ड है। इफ इक्वल्स टू 56 वैलिड इनवैलिड इनवैलिड, क्योंकि इफ भी क्या है? कीवर्ड। वाइल 1 इक्वल्स टू 56 वैलिड इनवैलिड। कितने लोग इनवैलिड के साथ हैं? कितने लोग इनवैलिड के साथ हैं? कितने लोग वैलिड के साथ? 4 5। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, किसी न किसी उस पर पहुंचना पड़ेगा। वैलिड इनवैलिड वैलिड इनवैलिड। इनवैलिड के साथ केवल आराध्य है, और कोई है इनवैलिड के साथ? invalid, इनवैलिड। यस, क्योंकि वाइल क्या है? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। यस और नो? लेकिन इसके साथ क्या ऐड हो गया है? तो ये क्या, अब कीवर्ड नहीं बचा। कीवर्ड में, कीवर्ड मतलब कीवर्ड, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो ये क्या होगा? वैलिड। यस और नो? वाइल, वाइल अकेला क्या है? कीवर्ड है, लेकिन इसके साथ जैसे तुम हो, तुम्हारा नाम आराध्य है और ए और जोड़ दिया अगर, तो आराध्य बन गया, तो तुम आराध्य कहां बचे? यस, आराध्य है ना? तो तुम तो बदल ही गए, लड़का से लड़की हो गए, आराध्या। यस, केवल ये जोड़, ऐसे बाइल में अगर वन जुड़ गया तो बाइल, बाइल कहां बचा? बाइल अकेला होता तो क्या होता? इनवैलिड होता, कीवर्ड्स होता। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, पहले से कंपाइलर को उसका पता है होता है कि ये क्या है। चलिए आप बताइए। while equals to 67 वैलिड इनवैलिड? बताओ भारत, वैलिड इनवैलिड? वैलिड, परफेक्ट। यस, क्योंकि वो आपको कीवर्ड नहीं पता, अंडरस्कोर लगे। अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर
इक्वल टू 70, वैलिड एंड वैलिड, वैलिड। int इक्वल टू 45.7, वैलिड एंड वैलिड, किसी लोग इनवैलिड के साथ आप क्या कर रहे हैं, इनवैलिड, इनवैलिड, यस, इनवैलिड, किसी लोग वैलिड के साथ आप आते हैं जो मतलब इंटीजर कीवर्ड इनवैलिड, इनवैलिड नहीं पूरा क्यों? ये अपन को तो परफेक्शन की तरफ जाना है, अगर डॉट भी रखा है ना उसका मतलब पता होना चाहिए अपन को क्यों। इनका आपका का कहना है कि इंटीजर है और आपने फ्लोट वैल्यू दी है, ठीक है? इनके साथ भी जाना है, ठीक? जो इनका मत है वही आपका मत है, ये गलत है, गलत किया था यस, बिग क्वेश्चन मार्क, यस, क्यों वैलिड है जबकि इंटीजर क्या है, कीवर्ड है, आपने धोखा दिया हम लोग, यस। In case of C, in case of C++, in case of Java, in case of .NET, ये क्या है, इनवैलिड। In case of Python, जितने भी डेटा टाइप्स हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, बूलियन, है ना, ये डेटा टाइप्स नहीं क्लास है, क्या है, क्लास। हमने बताया था अभी देखिए बताया था int इक्वल टू क्लास int, क्लास बूलियन, क्लास लिस्ट, तो क्या है क्लास, और ये क्लास कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है पाइथन के केस में, कीवर्ड नहीं है। तो लगभग 14 क्लासेस हैं, int, float, boolean, complex, yes, str, white, whiter is range, list, tuple, set, closure set, dict और none, ये सारी सर 14 क्लास अभी अपन आएंगे डेटा टाइप से, उसके बाद डेटा टाइप पे ही जा रहे हैं, तो इन डिटेल पढ़ेंगे, अगर सूखे जाके आप डेटा टाइप ही बोलो तो ये सारे के सारे डेटा टाइप्स कीवर्ड नहीं होते हैं पाइथन के केस में। और दूसरी बात आल्फा, जो आपने बोला था कि सर ये तो इंट दे दिया और वैल्यू फ्लो इंट, इंट यहाँ पे हम ये थोड़ी लिख रहे हैं इंट इक्वल टू समथिंग, यस, स्टैटिक टाइप थोड़ी है, ये कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनामिक टाइप, जैसे ए इक्वल टू अपन वैल्यू असाइन करते हैं ना उसी टाइप का है, इंट इक्वल टू हमने कोई वैल्यू, तो ये वेरिएबल नेम है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स, जो भी आप वैल्यू रखना चाहें वो वैल्यू रख सकते हो, ऐसा नहीं इंट लगा तो इंटीजर वैल्यू, ये वेरिएबल नेम एज अ वेरिएबल नेम आप यूज कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 100% लोग इनवैलिड डाला के आते हैं, लेकिन ये वैलिड है, यस, ठीक है। तो इक्वल्स टू 45, वैलिड, ये आपने बताया, वैलिड एंड वैलिड, वैलिड है पक्का, सब लोग आरा क्यों, हाँ, लोड कीवर्ड हमने अभी बताया कि 14 क्लास से 14 है, देख लो आपको बता देना है अभी नॉलेज के लिए, यस, इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट, यस, मूल, कॉम्प्लेक्स, यस, इसके बाद एसटीआर, इसमें केवल एसटीआर पे ही सब कुछ आ जाता है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं, जब फ्लोट में डबल दिया जाएगा सब कुछ आ जाएगा, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं। वाइट एरे
14 क्लासेस होती हैं, तो 14 डेटा टाइप्स बोलते हैं। ये क्या है? पाइथन के केस में सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। एवरीथिंग मस्ट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। यस, और पाइथन का ऑब्जेक्ट मोर स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू जावा का ऑब्जेक्ट। अनलिमिटेड मेमोरी साइज में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। यस और नो? इसलिए पाइथन इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और इसमें ये सारी क्लास है और इनके बनाते हैं ऑब्जेक्ट, बस इसी का खेल है पूरा। यस और नो? इंटीजर, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, एसटीआर, बाइट्स, बाइनरी, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, प्रोसेसर, टेक्स्ट और नन। यस और नो? तो यहाँ पे फ्लोट क्या है? क्लास है, क्लास कीवर्ड नहीं है। यस, इसलिए क्या है? वैल्यू। अब ये नहीं बोल रहा आज का ये द फ्लोट दिया और इंटीजर वैल्यू। परफेक्ट। तो इसमें नोट करके लिख भी लेना, ऑल प्री डिफाइंड क्लास नेम्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। क्लास नेम जो भी रहेंगे उसको एज अ वेरिएबल नेम आप यूज कर सकते हैं। यस, ये एग्जांपल हम उठा लेते हैं। Yes, last rule number 5. All the variable names are case sensitive. All the variable names are the case sensitive. केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस होता है ना? हम कैप्चा फिल करते हैं कभी कभी, आप लोगों ने देखा होगा जब आप आरजीबी वाले उसमें अकाउंट में जाते हैं तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग होता है। अगर आप ए को कैपिटल ए लिख देते हो तो एरर आ जाती है इनवैलिड कैप्चा। वो क्या कहलाता है? केस सेंसिटिव है ना? कई लैंग्वेज ऐसी होती है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए का मतलब एक ही होता है। यस, लेकिन पाइथन के केस में क्या होता है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कैपिटल और स्मॉल अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने यूज किया था while equals to 45, तो क्या आ रहा था? इनवैलिड। यस, क्या आ रहा था? इनवैलिड। वहीं पे अगर हम गलती से w कैपिटल लिख देते और y लिखते इक्वल टू 45 लिखते तो ये क्या होता? वैलिड, क्योंकि ये केस सेंसिटिव। या सुनो, हमने if इक्वल टू लिखा था 56, तो ये इनवैलिड क्योंकि f क्या है? कीवर्ड। वहीं पे हम i कैपिटल लिख देते और f इक्वल टू 67 लिखते तो ये क्या हो जाता? वैलिड, क्योंकि f आपकी वर्ड नहीं है, क्योंकि पाइथन के स्ट्रक्चर है स्मॉल आई को ही रिकॉग्नाइज कर। यस, हमने अगर लिखा एज इक्वल टू 56, वैलिड, एज इक्वल टू 52, ठीक, एज इक्वल टू 23, ठीक, एज इक्वल टू 12। ये सारे के सारे अलग है। लिखा ये भी है, अगर इनको प्रिंट कराएंगे ना हम, सबकी वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी। प्रिंट प्रिंट यस, एज कॉमा एज कॉमा एज कॉमा यस, सबकी वैल्यू अलग अलग है। 56, 52, 23, 12। यस, इसका मतलब क्या है? पाइथन इज वन ऑफ द केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
क्लियर? मतलब कैपिटल और स्मॉल अलग अलग होता है, कैपिटल ए की वैल्यू अलग होगी और स्मॉल ए की वैल्यू अलग होगी, मतलब दोनों मेमोरी में अलग स्पेस बनाए। यार और केस सेंसिटिव नहीं होती तो उसी जगह को मिलता है। मैं गारंटी देता हूं अगर तुम सब के सब 5-6 महीने तक टिक गए मेरे पास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहोगे आप अपनी क्लास 500 गारंटी है, लिख लो, हमसे साइन करा लो। किसी भी कॉलेज में होगे आप, किसी भी पोजीशन पे होगे, पाइथन के केस में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि इतना हम डीप ले जाएंगे आपको, डेटा साइंस लेवल की पाइथन पढ़ाएंगे। यस, और ये अगर तुम लोगों को रिव्यू लेना है तो तुम्हारे जो आगे बैच में है ना, उनसे आप पूछ सकते हो उनकी क्या स्थिति थी और आज उनकी क्या स्थिति। ठीक, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारी क्लास में है ना, जिनपे अच्छे से टाइप करके नहीं बनता था, अब वो प्रोग्रामिंग के मास्टर बने घूम रहे। यार जिन्हें व्यक्ति को टॉप कर रहे हैं, तो ये सब इनकी मान्यता है ना। तो इन पर विश्वास करो और लगभग 6 महीने लड़ के अच्छी पढ़ाई कर लो, फिर देखो मजा है ना। लास्ट एक और पॉइंट है, वो रूल नहीं है, सजेशन। क्या रूल नहीं है, वो क्या है, सजेशन। इसको और फिर आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। चूज द वेरिएबल नेम, चूज द वेरिएबल नेम in such a way that they must be user friendly। ठीक, अब आपको नियम तो बता दिए सारे के सारे कैसे बनाने हैं, लेकिन एक नियम ये भी है कि सारे रूल्स आप प्रॉपर लगा दें, लेकिन नाम आप यूजर फ्रेंडली नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या दे दिया, मान लो यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू टाइप कर, ठीक, और इक्वल टू दे रहे हो 1। यार ये तो वैलिड है क्योंकि अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो, और वैल्यू क्या दे रहे हो 1। अब इसको प्रोग्राम में आप यूज करोगे हर बार तो कितना मेमोरी स्पेस लेगा, इतना बड़ा नेम है ना। पाइथन के केस में वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, इंटर करोगे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें प्रिंट कराना, तो अब इसको कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, या तो कब तक कॉपी पेस्ट करोगे, प्रिंट करोगे फिर इसको कॉपी करोगे, यस, फिर प्रिंट करोगे, तो हर बार यही करते रहोगे। इसलिए यूजर नेम ऐसा होना चाहिए वेरिएबल नेम जो हमें बार बार यूज करना पड़े, तो यूजर फ्रेंडली। यस, यूजर फ्रेंडली मतलब आपको याद भी रहे, आप यूज भी कर पाओ, क्योंकि पता चले 1000 लाइन का प्रोग्राम बनाया है, आपको याद तो रहेगी क्या, अब उसमें क्या पढ़ोगे यार, है ना। तो यूजर फ्रेंडली, जैसे कृष्णा, आप अपना वेरिएबल नेम बना सकते हो और बना तो कृष्णा अंडरस्कोर चौबे। यस, तो आप थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली, अपन पासवर्ड नहीं बनाते, यूजर फ्रेंडली ऐसे बनाते अपन को याद है, ऐसा कि एक बार बनाया तो फिर 2 बार हटा नहीं पाते, है ना। तो ये सजेशन है कि जो वेरिएबल नेम है वो क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। तो एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं 2 मिनट के अंदर। A variable name is a combination of alphabet, digits, and a special symbol underscore. A first letter of a variable name must be start with alphabet or underscore. Third rule: within the variable name, special symbols are not allowed except underscore. Rule number 4: no keywords to be used as a variable name because all the keywords are having special meaning to the language compiler. All the variable names are case sensitive, or one suggestion: use the variable name in such a way that they must user friendly. That's all. ठीक, कल से हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास डेटा